میں خداوند کا خادم پاسٹر شہباز عبدالمنان ایک بار پھر خداوند کی پاک حضوری میں اپنے اس مضمون کو جس کا آغاز ہم نے قیادت میں نشو و نما کی صورت میں کیا، آج اس کے دوسرے باب جس میں ہم ایک قائد کی تیاری کے تعلق سے بات چیت کر رہے ہیں، آج اس میں ہم قیادت کے تعلق سے اور قیادت کے اندر قائد کی تیاری کے تعلق سے چند اور باتیں سیکھیں گے۔ آئیے ہم ایک حوالہ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 57 باب، اس کی 15ویں آیت۔ Isaiah chapter 57 verse 15۔ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ ایمانداروں، پوٹینشل لیڈرز اور بائبل سٹوڈنٹس، ہمیں قیادت کی تیاری کے اندر جو ہم نے پہلی بات دیکھی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ خداوند خدا آزمائشوں میں سے گزار کر جو ہے وہ ایک قائد کو تیار کرتا ہے، تاکہ ایک قائد پورے طور پہ جو ہے قیادت کرنے کے لیے تیار ہو سکے، یا ایک ایماندار پورے طور پہ خداوند کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ آج ہم چند اور باتیں جو اس تیاری کے سلسلے میں دیکھیں گے۔ خداوند خدا کی دلچسپی ہے کہ خداوند کسی بھی ایماندار کو یا کسی بھی قائد کو اس سے پہلے کہ وہ استعمال کرے، اس کو شکستہ دل کرے۔ اور بہت ضروری ہے کسی بھی ایماندار کا خداوند کے استعمال کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہونے سے پہلے کہ وہ شکستہ دلی سے گزرے، کیونکہ اگر ہم شکستہ دلی پہ غور کریں اور اس کے کچھ معنی کو اور اس کی کچھ ڈیپتھ میں جائیں، تو کیمبرج یونیورسٹی کہ اس کی ڈکشنری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شکستہ دلی کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، شکستہ دلی یا بروکننس ایک ایسی حالت ہے، کسی بھی شخص کی ایک ایسی حالت میں ہے جس میں انسان بری طرح ختم یا تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا کسی قائد کو استعمال کرے، وہ چاہتا ہے کہ قائد ایک ایسی سچویشن میں آئے جہاں وہ زیرو ہے، جہاں اس کی صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی طاقت سے، اپنے زور یا اپنی عقل سے سب کچھ نہ کرتا پھرے، بلکہ پورے طور پہ خدا پر ڈیپینڈ کرے۔ اور روحانی صورتحال میں اگر اس بات کو سمجھے تو خداوند کا انٹرسٹ یا خداوند کی دلچسپی یہ ہے کہ ایک مسیحی قائد جو ہے وہ پورے طور پہ اپنے سیویئر، اپنے نجات دہندہ پر ڈیپینڈ کرنا سیکھے، کیونکہ جب تک ایک شخص، ایک ایماندار پورے طور پہ جو ہے وہ اپنی خودی کا انکار نہیں کرتا، اپنے آپ کو جو ہے پورے طور پہ سرنڈر نہیں کرتا، یا اپنی کمزوری کی حالت میں خدا پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، تب تک وہ قیادت نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ، مرد خدا جو بہت بڑا لیڈر ہے، خداوند خدا اس کی زندگی کے اندر اس کو زندگی کے کس حصے میں جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی آزادی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کی اگر فزیکل سچویشن کو دیکھیں، there was a situation، ایک حالت تھی جب موسیٰ جو ہے he was quite young، وہ نوجوان تھا، وہ بہت سارے علوم کو جانتا تھا، وہ ایک مقام رکھتا تھا، ایک عالی مرتبہ رکھتا تھا، اس میں وہ اپنی جسمانی قوت میں، جسمانی کاوش میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن خداوند خدا نے ایٹ دیٹ ٹائم اس
होने की परमिशन नहीं देता। खुदावंद खुदा ऐसी सिचुएशन पैदा करता है जहां वो कायद बनना चाहता है लेकिन उसको भागना पड़ता है, उसको वहां से मदियान की सरजमीन की तरफ जाना पड़ता है। Why? Because that was not that time, वो वक्त नहीं है जब मूसा पूरे तौर पे तैयार है। मूसा को पूरे तौर पे तैयार होना है और पूरे तौर पे तैयार होने के लिए फिर वो 40 साल मदियान की सरजमीन में रहता है। एंड व्हेन ही वाज ओल्ड एंड एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में, आप इसको समझ सकते हैं कि 80 साल की उम्र में किसी शख्स की क्या हालत है। वो फिजिकली वीक है, वो मेंटली वीक है, वो उसकी हड्डियां, उसके जिस्म जो है, उसके पट्टे, उसकी सारी कुव्वत जो है उस तरह से काम नहीं कर रही। एंड गॉड इज रेडी टू यूज मोसेस फॉर हिज ग्लोरी। खुदावंद खुदा उस वक्त में जो है वो तैयार है कि वो मूसा को इस्तेमाल करे। और जब वो मूसा से बात करता है तो मूसा इस बात का बरमला इजहार कर, मैं कौन, आई एम नथिंग, क्योंकि उस वक्त तक ही वॉज समथिंग लाइक नथिंग। उस वक्त में उसकी सूरत हाल ये है कि वो नथिंग हो चुका है। लेकिन ये वो हालत है जब खुदा इस्तेमाल करना, और खुदा उसको उस सिचुएशन में लेके आता है कि वो पूरे तौर पे खुदा पर डिपेंड करे। और आप जानते हैं ऐसी सूरत में खुदा अपनी कुदरत, अपना इख्तियार, अपने मोजज़ात मूसा के हवाले करता है। और जब वो उसको लाठी देता है, इट रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ गॉड, ये खुदा की इख्तियार को पेश करता है। सो खुदावंद खुदा एक लीडर को इससे पहले कि खुदावंद इस्तेमाल करे, वो चाहता है कि वो अपने आप को पूरी तरह से खाली करे, वो पूरी तरह से अपनी खुदी का इनकार करे। आइए एक हवाला देखते हैं, 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से 29वीं आयत लिखा है, ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। याद रखना है मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग खिदमत में इसलिए आते हैं कि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। खिदमत में इसलिए आते हैं कि उनके पास जो है वो बड़ी विजडम है, बड़ा नॉलेज है, बड़ी अकल है। वो इसलिए आते हैं कि वो बड़े स्ट्रांग है, बड़े पावरफुल है। लेकिन खुदावंद खुदा इससे पहले कि किसी लीडर को इस्तेमाल करे, खुदावंद खुदा इससे पहले कि किसी ईमानदार को इस्तेमाल करे, खुदावंद खुदा की ख्वाहिश है कि वो अपनी बशरी हिकमत से अपने आप को खाली करे, बशरी हिकमत पर डिपेंड ना करे। खुदावंद खुदा चाहता है कि वो अपने बशरी इख्तियार, अपनी बशरी अथॉरिटी से अपने आप को खाली करे। ऐसा ना हो कि वो अपने बशरी इख्तियार को देखता रहे कि मेरा बड़ा मुकाम है, मेरी जो है इस सोसाइटी के अंदर बड़ी इज्जत है, मुझे बड़ी विजडम है, मुझे मेरे पास बड़ी दौलत है, और ये सारी चीजें मिलकर जो है वो शायद खुदावंद के काम आएंगी, शायद मैं इनसे जो है वो सब कुछ कर लूंगा। नो, खुदावंद खुदा चाहता है कि हम अपने आप को खाली करें और एक ऐसी सिचुएशन में आए जहां पे हम बशरी तौर पे इन सब चीजों से जो है वो आजाद हों और पूरे तौर पे खुदा पे डिपेंड करें। या अगर ये चीजें हमारे पास हैं भी तो हम इन सब चीजों को खुदावंद के कदमों में लेके आएं और खुदावंद से कहें, लॉर्ड आई एम नथिंग, मैं अपने आप को खाली करता हूं और मैं ये सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं।
तू इन सारी बशरी कुव्वतों को जो है वो अपने जलाल के लिए अगर चाहता है तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मैं पूरे तौर पे सरेंडर करता हूं। और याद रखना है, खुदावन के नजदीक इस शिकस्ता दिली की बहुत बड़ी अहमियत है। खुदावंद खुदा इस शिकस्ता दिली को जो है पसंद करता है और वो चाहता है कि उसका खादम और मसीही लीडर या रहनुमा जो है वो अपनी तैयारी के प्रोसेस में इस मकाम पर आए कि वो शिकस्ता दिल हो जाए। क्यों? अब गौर कीजिए, एक हवाला देखेंगे कलाम मुकद्दस में, ज़बूर 34 उसकी 18वीं आयत, 34वां ज़बूर उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। खुदावंद खुदा उनके करीब है। Whenever, जब कोई भी बिलीवर, जब कोई भी रहनुमा इस मकाम पर पहुंच जाता है कि वो ये कहता है कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो ऐसी सूरत में खुदा उसके करीब आ जाता है। कलाम कहता है खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक, क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर लिया। अब वो ये कह रहा है, अब उसका बयान ये है कि मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, मेरी अकल, मेरी दुनियावी इख्तियार और हिकमत, ये सारी बशरी कुव्वतें मैं इनको जीरो समझता हूं। जैसे पौलुस रसूल अपने नफे की सारी चीजों को जो है वो अपने लिए कूड़ा समझता है। वो अपने इल्म पर तकिया नहीं करता, वो अपनी हिकमत पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो खुदा पर डिपेंड करता है। और यीशु मसीह की सलीब को तकना जो है, दैट इज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, उसकी जिंदगी की पहली अहमियत है और वो खुदावन की तरफ देखता है। फिर खुदावन के नजदीक शिकस्ता दिली जो है ये एक बेहतरीन कुर्बानी भी है। दैट इज द बेस्ट सैक्रिफाइस इन साइट ऑफ गॉड, ये खुदावन की निगाह में बेहतरीन कुर्बानी भी है। आइए एक हवाला हम देखते हैं, ज़बूर 51 उसकी 17वीं आयत, साम 51 वर्स 17। कलाम में लिखा है, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है, ए खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। दैट इज द बेस्ट सैक्रिफाइस। अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर को बेहतरीन कुर्बानी खुदावन को पेश करना चाहते हैं, बेहतरीन कुर्बानी खुदावन की हजूरी में गुजराना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, हम अपने आप को पूरे तौर पे खाली करें। आज लोगों की जिंदगी और बदकिस्मती से खादमीन की जिंदगी के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज पर वो डिपेंड करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए जान मारते हैं, लेकिन वो उनके ख्याल में, उनकी अकल के मुताबिक जो है ये रिसोर्सेज जो है शायद उनकी स्ट्रेंथ है। नो, खुदावंद खुदा इन रिसोर्सेज की तरफ नहीं देख रहा। खुदावंद खुदा इस अकल की, इस पैसे, इस इख्तियार की तरफ नहीं देख रहा। खुदावंद ये देख रहा है कि मेरा बंदा कब पूरे तौर पे खुद को खाली करेगा, कब वो अपने खुद ही का इनकार करेगा और मैं उसके लिए अपना हाथ बढ़ाऊंगा। और ये कलाम बताता है कि बेहतरीन कुर्बानी है। वन मोर थिंग, एक और बात जिसके लिए खुदावंद खुदा जो है वो इस शिकस्ता दिली को जो समझता है, अहबार की किताब उसके 26वें बाब की 13वीं आयत को अगर हम देखें, लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 13, कलाम में लिखा है, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए की चोबें तोड़ डाली हैं और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। मेरे अजीजों, अगर हम उस वक्त में जब इस्राएली मिस्र के गुलाम थे उनकी हालत का बगौर जायजा लें, व्हाट टाइप ऑफ द सिचुएशन दे वर, किस किस्म की सूरत हाल में से वो गुजर रहे थे, किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे थे,
किस बेबसी की वो हालत में थे कि खुदा को तरस आता है और खुदा खुद कहता है कि मैंने तुम्हारी हालत को देखा है, मैंने तुम्हारे रोने को देखा है, मैंने तुम्हारी बेबसी को देखा है। खुदा जानता है कि इनकी जिंदगी के अंदर कोई दूसरी कुदरत काम नहीं अब करेगी, क्योंकि वो उन जो है वो पार्ट्स को आजमा चुके हैं। मूसा जो उन्हीं की कौम का था, he was trying to give them freedom, उनको आजाद करने के लिए जो है उसने कोशिश की है, लेकिन वो उनके काम नहीं आई। अब खुदा जो है वो मुदाखलत करता है। और याद रखना है, जब लोग शिकस्ता दिल होते हैं, जब लोग टूट जाते हैं, जब लोग बेबस हो जाते हैं, जब लोगों का कोई दूसरा पुरसाने हाल नहीं होता, एट दैट टाइम खुदावंद खुदा उनकी फ्रीडम के लिए मिरेकलसली मौजज़ाना तौर पे अपने हाथ को बढ़ाता और उनको आजाद करता है। बहुत जरूरी है एक खादम के लिए, बहुत जरूरी है एक ईमानदार के लिए कि वो अपनी जिंदगी के अंदर ना तो अपने रुपए पैसे पर भरोसा करे, ना अपनी अक्ल अपनी हिकमत पर भरोसा करे, ना अपने इल्म पर भरोसा करे, और उसके भरोसा करने के लायक अगर कोई चीज है, अगर कोई जात है, तो वो महज हमारा खुदावंद है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ हमें बचाता, हमें छुड़ाता है। और कलाम कहता है किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन ईमानदार और खास तौर पे मसीही ईमानदार कायद जो है वो खुदावंद की तरफ देखता है, क्योंकि ये शिकस्ता दिली मेरे अजीजों हमारी जिंदगी के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है, बहुत सारे अहम रोल अदा करती है, क्योंकि ये शिकस्ता दिली हमें फरोतन करती है। जब हम बेबस हैं, जब हम टूटे हुए हैं, जब हम जो है वो लाचार हैं, तो हमारे लिए फरोतन बनना, हमारे लिए झुकना, हमारे लिए जो है वो खाकसार होना बड़ा आसान है। और कलाम कहता है, खुदा कहता है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते वो खाकसार होकर, और ये खाकसारी अगर कोई जो है वो चीज हमारे अंदर पैदा कर सकती है, ये आजिज़ी और फरोतनी हमारे अंदर ला सकती है, तो ये हमारी जिंदगी के अंदर शिकस्ता दिली है। फिर शिकस्ता दिली जो है वो हमें तौबा तक जो है वो लेके भी आती है। आपको याद होगा, अगर आप खुदावंद के बंदा दाऊद की तरफ देखें, एक ऐसा वक्त आया जब दाऊद ने गुनाह किया और वो अपने गुनाह को छिपा रहा था, वो अपने गुनाह को जो है वो चाहता था कि लोगों पर जाहिर ना हो, और जब जैसे ही नातन नबी ने उसका गुनाह उस पर जाहिर कर दिया, तो दाऊद की सिचुएशन देखने वाली है। दाऊद की सूरत हाल का अगर हम जायजा लें तो उसको पता चल चुका है कि अब मैं लाचार हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो एट वंस जो है वो अपनी खताओं का इकरार करता है। अगर हम ज़बूर 51 उसकी 3 और 4 आयत का पहला हिस्सा हम देखें, तो कलाम कहता है, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है, मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है। मेरे अजीजों, शिकस्ता दिली हमें तौबा करने पर भी आमादा करेगी। जब हम बेबस हैं, जब हम, अब वो बादशाह है लेकिन बेबस हो चुका है, क्यों? क्योंकि उसका गुनाह जाहिर हो चुका है। हालांकि इससे पहले भी वो गुनाह की हालत में है, लेकिन जो है वो शिकस्ता दिली के सबब जब वो टूट जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैं पकड़ा गया हूं, तो वो शिकस्ता दिल होकर खुदावंद के उसको, क्योंकि वो इस बात का एक्सपीरियंस रखता है कि खुदावंद के हाथ में पड़ना कितना हौलनाक होगा, और अगर मैं शिकस्ता दिल नहीं होता, अगर मैं अपने आप को खाली नहीं करता, तो कभी भी खुदावंद मेरा गुनाह माफ नहीं करेगा। फिर शिकस्ता दिली जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो फजल को भी दावत देती है। हम खुदावंद के फजल को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खुदावंद के फजल को कभी टेस्ट नहीं कर पाएंगे,
जब तक हम शिकस्ता दिल नहीं होते, जब तक हमारी निगाहें जो हैं वो हमारे रिसोर्सेस पर लगी हुई हैं, हमारी पावर्स पर लगी हुई हैं, लोगों पर लगी हुई हैं, we will never receive his grace। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेस उसकी एक ऐसी मर्सी का नाम है, ऐसे रहम का नाम है जिसके हम लायक नहीं। खुदावंद को पता है कि इस बंदे को जो है अब कोई इसके पास चारा नहीं है, इसके पास कोई दूसरा हल नहीं है कि ये बचाया जाए। एट दैट टाइम खुदावंद अपनी ग्रेस को जारी करता है और शिकस्ता दिली हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो फजल को लेके आती है। अब गौर करने का हवाला हम देखेंगे 2 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9। दूसरा कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। अगर आप अपनी जिंदगियों के अंदर जो है वो चाहते हैं उसकी कुदरत आपकी जिंदगियों में काम करे, तो मेरे अजीजों बहुत जरूरी है कि हम पूरे तौर पे उन सारी बातों, उन सारी चीजों, अपने जो भी जितना भी जिस्मानी फख्र है उस सब का इनकार करें ताकि उसका फजल हमारी जिंदगी में काम करे। क्योंकि एक लीडर की तैयारी के लिए, उसकी लीडर की तैयारी के लिए उसकी जिंदगी के अंदर शिकस्ता दिल होना बहुत अहम और बहुत जरूरी है। फिर शिकस्ता दिली जो है हमें खुदा पर पूरे तौर पे इन्हिसार करना भी सिखाती है। डेफिनेटली जब हम शिकस्ता दिल होते हैं तो हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जब हम बेबस हैं, और जब हम बेबस हैं तो हमारी निगाहें आसमान की तरफ उठती हैं, खुदावंद की तरफ उठती हैं। हम खुदावंद की तरफ देखते और खुदावंद पर पूरा भरोसा करते हैं। एक शख्स अगर उसके बैंक में कुछ नहीं है, उसके घर में कुछ नहीं है, एक शख्स जिसको कुछ भी सुझाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो बेबस है डेफिनेटली। और हम इस बात को जानते भी हैं कि जब हम बहुत बेबस होते हैं, जब हमें किसी चीज का पता नहीं चलता, फिर हम खुदावंद की तरफ देखते हैं, खुदावंद पर इन्हिसार। हम जानते हैं कि खुदावंद ही है जो हमारी भलाई की, हमारी बेहतरी की, हमारी जो है वो रेस्टोरेशन की को सूरत हाल पैदा कर सकता है। ही इज सिंपली गॉड। तो शिकस्ता दिली हमें खुदा पर इन्हिसार करना भी सिखाती है। और जिस तरह हमने शुरू में भी देखा है, कलाम मुकद्दस बताता है कि शिकस्ता दिली खुदावंद खुदा को दावत देती है, क्योंकि वो शिकस्ता दिलों के नजदीक है। वो शिकस्ता दिली का एटीट्यूड जो हमारे अंदर पैदा होता है वो खुदावंद खुदा को खुशामदीद कहता है। सो मेरे अजीजों, इस बात को जानते हुए, इस बात को समझते हुए कि खुदावंद हमारा खुदा इस बात में दिलचस्पी लेता है कि ईमानदार अपने आप को खाली करे, ईमानदार दुनिया की चीजों का इनकार करे, ईमानदार अपनी फितरी हालत में जो कुछ उसके पास है उस पर फख्र न करे, बल्कि हमारा फख्र पूरे तौर पे खुदावंद खुदा हो और हम खुदावंद की तरफ देखें। इसलिए यीशु मसीह ने इस मेरिट को जो है हर ईमानदार की जिंदगी में रखा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, यानी उसकी खुदी के अंदर जितनी भी चीजें हैं जिन पर वो फख्र कर सकता है, जिन पे वो शेखी भगाड़ सकता है, जिस पर वो भरोसा कर सकता है, उन सारी चीजों से अपने आप को खाली करे। और अगर वो खाली करता है, अपने आप को शिकस्ता दिल करता है, फिर खुदावंद खुदा का हाथ उसके लिए बढ़ता है। सो आजमाइशों के बाद दूसरी अहम बात, दूसरा अहम काम जो लीडर की तैयारी के लिए, जिसमें से खुदावंद गुजार कर लीडर को तैयार करता है, वो हमारी जिंदगी के अंदर शिकस्ता दिली है। आइए अपने आप को पेश करें और खुदावंद को कहें कि खुदावंद खुदा, मैं अपने आप को खाली करता हूं और ये दुनिया की सारी चीजें तेरे सामने मेरे लिए महज एक कूड़े की तरह हैं। मेरे लिए मेरा फख्र, मेरे लिए मेरा प्राइड हमेशा मेरा खुदावंद है जो मुझे संभालता है और जिसके हाथों में
मेरी सारी सरफराजी और मेरी सारी कुव्वत और कुदरत काम करती है। आइए दुआ मांगते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद तू हमारा ऊंचा बुर्ज है। ओ खुदावंद खुदा तो हमारे छिपने की जगह है। खुदावंद तू ही हमारी ताकत है। हम इस बात का इकरार करते हैं क्योंकि खुदावंद ये दुनिया की सारी कुव्वतें, ये दुनिया की सारी कुदरतें और खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी के अंदर हर किस्म का इख्तियार और हर किस्म की वो चीज जो खुदावंद हमें शेखी बिगाड़ने पे खुदावंद उकसाती है, वो महज खुदावंद खुदा जीरो है। वो उनकी कोई हकीकत नहीं है। वो सब कुछ आर्जी है। खुदावंद तेरी कुदरत और तेरा फजल हमारी जिंदगियों में दायमी है। बख्श देना खुदावंद खुदा, हम अपने आप को खाली करें, हम अपने आप को शिकस्ता दिल करें ताकि खुदावंद तू हमें इस्तेमाल करे, क्योंकि जब हम अपने आप में जीरो हो जाते हैं तो खुदावंद खुदा तू फिर हमें लेता है और फिर खुदावंद हम तेरी मर्जी से इस्तेमाल होते हैं। बख्श देना हम सब अपनी जिंदगी में शिकस्ता दिली के इस भेद को रिसीव कर पाएं और खुदावंद तुझ पर पूरे तौर पे भरोसा करें ताकि खुदावंद तू हमारे करीब आए और खुदावंद हमें बरकत दे। इस वक्त में मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।